Hello students, welcome to this new lecture of C++. In today's lecture, I am going to discuss with you the concept of storage classes. Now, in the previous video lecture, I have discussed the concept of data types. What are the various data types available in C++? Now, once a variable is declared, like we have written the statement int a. Now, the name of the variable is a and its data type is int. तो डेटा टाइप क्या डिफाइन करती है कि किस टाइप का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर हो सकता है एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द वेरियस डेटा टाइप्स so if we declare it as int so it means the a can store only integer value so data type just define the type of the value that can be stored in a particular variable. Now apart from data type there are certain extra characteristics of the variable that need to be defined. अब वो कैसे डिफाइन होती हैं? दैट आर डिफाइंड बाय अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज क्लास. Storage class defines the visibility or scope and lifetime of a variable. अब डेटा टाइप तो सिर्फ टाइप डिफाइन करती है कि किस तरह का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर होगा. अब वो वेरिएबल को फंक्शन का कौन सा पार्ट एक्सेस कर सकता है? एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं. Okay, there can be a number of functions that we can define within a single program. अब प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला फंक्शन होता है void main. Main is the first function of any program in C++. और उसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं. अब जो वेरिएबल हमने किस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है और उसकी लाइफ जो है वो कब तक रहेगा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, उसका कंट्रोल कब तक रहेगा और उस वेरिएबल को प्रोग्राम का कौन सा पार्ट एक्सेस कर सकता है, कौन सा पार्ट एक्सेस नहीं कर सकता. दीज आर ऑल द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिफाइंड बाय द स्टोरेज क्लास ऑफ अ वेरिएबल. So a variable has a data type and it also has a storage class. Now, the storage class defines the following four things about a variable. First one is storage, where it gets stored. There are two types of memory. It can either be stored in computer memory or there are certain CPU registers. The variable can also get stored in CPU register. So storage class defines where the variable gets stored, whether in computer memory or the CPU registers. सेकंड इज डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू. जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सपोज आई हैव रिटन इंट ए, उसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाती है? दैट इज आल्सो डिफाइंड बाय द स्टोरेज क्लास. थर्ड इज स्कोप. स्कोप मींस द फंक्शंस इन व्हिच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वुड बी अवेलेबल. वो डिफरेंट फंक्शंस किस केस में उस वेरिएबल की वैल्यू अवेलेबल रहेगी या नहीं रहेगी, दैट इज आल्सो डिफाइंड बाय द स्टोरेज क्लासेस. एंड द फोर्थ वन इज लाइफ. हाउ लॉन्ग द वेरिएबल वुड एग्जिस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी, वो कब तक रहेगा वहां पे. these are all the these are the basic four characteristics that are defined by the storage class. Now there are five types of storage classes available in C++. If we talk about C language, there were four categories as you have already done. आपने C में भी किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि स्टोरेज क्लासेस चार तरह की होती है. इन all these four storage classes are same. C और C++ में सेम काम करती हैं. There is another extra one that is included in C++ and that is called as mutable storage class. First is automatic storage class, second is register storage class, static storage class, external storage class and mutable storage class. I will discuss all these one by one along with the examples. The first one is automatic storage class. By default, the storage class of a variable is automatic. What does it mean by default? By default means अगर हम variable की storage class define नहीं करते हैं, I have just written int a, तो उसकी storage class क्या है? Automatic. अगर हम कोई भी storage class define नहीं करेंगे तो by default the storage class of all the variables is automatic. Now features of automatic storage class is when we declare a variable as automatic variable, it gets stored in the computer memory. Storage कहाँ पे होती है? It gets stored in computer memory. Its default initial value is garbage value. Garbage value means it will take any value from the memory and assign it to that variable. जब तक हम उसमें अपनी कोई नई value assign नहीं करेंगे. I have written auto int a. तो a में कोई भी garbage value compiler अपनी तरफ से उसमें store करवा देगा. Scope. What is the scope? It is local to the block in which it is defined. जिस ब्लॉक के अंदर हमने उस वेरिएबल को डिफाइन किया है उसका स्कोप जो है, उसकी वैलिडिटी जो है वो उसी ब्लॉक के अंदर है. ब्लॉक मींस वो जो कर्ली ब्रेसेस होती है, कर्ली ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ पे क्लोज हुई, दैट फॉर्म्स अ ब्लॉक. और जिस ब्लॉक के अंदर हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है उसी ब्लॉक के अंदर उसकी वैलिडिटी है, उसके बाहर कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता. लाइक life of that variable remains within the block in which variable is defined.
जिस ब्लॉक के अंदर उसको डिफाइन किया है, जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर है तब तक उसकी लाइफ है। जैसे कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर आएगा उसकी लाइफ टर्मिनेट हो जाएगी। लुक एट द एग्जाम्पल, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। मैंने दो वेरिएबल लिए आई जे and the data type of ij is int and their storage class is auto। पहले वेरिएबल की स्टोरेज क्लास लिखी जाती है, फिर उसके बाद उसकी डेटा टाइप लिखी जाती है, देन आफ्टर द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आई और जे इंटीजर टाइप के हैं और उनकी जो स्टोरेज क्लास है ऑटो। ये दोनों डिक्लेयर करने के बाद आई हैव डायरेक्टली प्रिंटेड द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सी आउट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द वैल्यूज जस्ट लाइक प्रिंटफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो आई और जे की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। अब आई और जे में मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। मैंने ना तो यूज़र से असाइन की, ना वहाँ पे उसको डिफॉल्ट वैल्यू कोई दी। तो अभी इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, बट मैंने आई और जे को प्रिंट करवाया एंड द आउटपुट विल लुक लाइक दिस। दीज आर जस्ट एजम्पशन। आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो कोई भी दो नंबर को प्रिंट करेगा। दीज आर कॉल्ड एज गार्बेज वैल्यू। वो मेमोरी में ऑलरेडी जो भी कोई भी दो नंबर स्टोर होंगे, कहीं से भी रैंडमली उठाएगा और उनको आई और जे में स्टोर करेगा। So this is the automatic storage class. Second is register storage class. In register storage class, the features of the register storage class are: first, storage, where the register variables are stored. They are stored in CPU registers. They are not stored in computer memory. They are stored in CPU registers. Default initial values, garbage value, same with as in the case of automatic storage class. Garbage value. Scope. Scope is same, local to the block in which it is defined. जिस block के अंदर उसको define किया उसी में उसका scope हो. And life till the control remains within the block in which the variable is defined. जिस block के अंदर उसको define किया उसका scope भी वही है और उसकी life भी वही है. Now look at this example. मैंने एक वेरिएबल लिया I, data type of I is int and its storage class is register. The register storage class is written by the keyword register. Now I have used this for loop. I is equal to 1 less than 10 I plus plus. It will print the values from 1 to 10 and I have printed the value of I. The output will be 1 2 3 4 5 6 7 8 so on up to 10. So this is the register storage class. Now what is the difference between automatic and register? सेम है। अगर मैं इसको ऑटो भी लेता तो वो तब भी 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाता। अब डिफरेंस क्या है रजिस्टर स्टोरेज क्लास में? द डेटा द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गेट्स स्टोर्ड इन सीपीयू। इन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल गेट्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। अब सीपीयू रजिस्टर क्या होता है? दे आर वेरी फास्टर टू एक्सेस। जब कंपाइलर उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करेगा, दे आर वेरी फास्टर टू एक्सेस। बड़ा इजीली और फास्टर वे में उसको एक्सेस कर सकता है। So the register variables are commonly used where the variable is accessed many times. जब उसको बार बार एक्सेस करनी है वैल्यू, जस्ट इन द केस ऑफ लूप्स। लूप्स में क्या होता है? बार बार उसको एक्सेस कर रहा है। लूप अगर 1000 टाइम्स चल रहा है तो उसने आई की वैल्यू को 1000 टाइम्स एक्सेस करना है। So to get the faster access, we can declare a counter variable as register. Now, third is static storage class. Third one is static storage class. Its features are the data gets stored in memory, just like automatic storage class. Here is the difference. Default initial value is 0. Okay. The default initial value in previous term was garbage. In this static storage class, it is 0. The scope of static storage class is it is local to the block in which it is defined. जिस block के अंदर variable को define किया है, it is local. This is the same concept as in case of automatic and register storage class. Now life. Here is the difference. Life. The value of the variable persists between different function calls. अब वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी जो लाइफ है, ऑटोमेटिक और रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो उसी ब्लॉक के अंदर होती है जिस ब्लॉक के अंदर उसको डिफाइन किया है। स्टैटिक में ऐसा नहीं होता। उसको जिस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है उसमें तो उसकी वैल्यू रहती है, और भी जितने भी फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं अगर उनमें भी हम उसको यूज करें तो उसकी वैल्यू वहाँ भी परसिस्ट करेगी। आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग दिस एग्जांपल। लुक एट द एग्जांपल। यहाँ पे दो कोड लिखे हैं मैंने। दिस इज द फर्स्ट कोड, दिस इज द सेकंड कोड एंड दीज आर द आउटपुट ऑफ दीज टू कोड्स। फर्स्ट मैंने क्या किया, मेन के अंदर आई हैव रिटन वन फंक्शन, एक ही फंक्शन मैंने लिया इंक्रीमेंट, और उसको 3 बार वॉइड मेन से कॉल किया। एंड इन द इंक्रीमेंट फंक्शन मैंने एक वेरिएबल लिया ऑटो इंट आई इज इक्वल टू 1। उस आई की वैल्यू को प्रिंट किया एंड आफ्टर दैट आई हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ आई एज आई इज इक्वल टू आई प्लस। अब इन फर्स्ट केस दिस इज डिक्लेयर्ड एज ऑटो, in second case this is the same code, only difference is that I have declared this variable as static. The storage class of this I is automatic,
and storage class of this I variable is static. Now look at the difference between the two outputs. First, कंट्रोल मेन के अंदर आएगा, यहाँ पे जैसे आया इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल विल गो इनटू द इंक्रीमेंट फंक्शन। अब इंक्रीमेंट के अंदर हमने आई को डिक्लेयर किया, आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, 1 विल बी प्रिंटेड एंड आई विल गेट इंक्रीमेंटेड। अब आई में क्या हो गया 2, 1 उसने प्रिंट कर दिया और आई की वैल्यू में 2 हो गया। कंट्रोल दोबारा वॉइड मेन के अंदर जाएगा, फिर से ये फंक्शन मैंने कॉल किया, फिर से कंट्रोल इंक्रीमेंट के अंदर आएगा। नाउ इंट आई इज इक्वल टू 1। अब प्रीवियस स्टेप में आई में 2 था, बट इस जब दोबारा फंक्शन को कॉल किया तो आई में फिर से 1 हो जाएगा, बिकॉज इट इज एन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है वो फंक्शन के अंदर ही रहती है, जिस ब्लॉक के अंदर डिफाइन है। इस ब्लॉक के अंदर ही आई की वैल्यू है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड क्लोजिंग एट दिस। इस ब्लॉक के अंदर ही आई की वैल्यू परसिस्ट करती है और दूसरा फंक्शन उसकी वैल्यू को परसिस्ट नहीं करता, उसको यूज नहीं कर सकता, वो फिर से स्टार्ट होगा। दूसरी बार इंक्रीमेंट कॉल किया तो फिर से आई में 1 हो जाएगा, वो पीछे आई में जो 2 हुआ था वो डिलीट हो जाएगा, फिर से 1 प्रिंट करेगा और तीसरी बार भी 1 प्रिंट करेगा। सो इन दिस केस द आउटपुट विल बी 1 1 एंड 1। नाउ लुक एट दिस कोड। यहाँ पे क्या होगा, सेम कोड इज देयर, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आया आई इक्वल टू 1 हुआ, आई की वैल्यू प्रिंट हुई 1 और आई में अब 2 हो गया। फिर से कंट्रोल वापस गया, फिर से इंक्रीमेंट फिर से आया यहाँ पे, तो अब दोबारा ये आई इक्वल टू 1 नहीं करेगा, अब आई में इंक्रीमेंट हो चुका है, आई इज 2 नाउ, तो अब ये आई की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। फिर तीसरी बार जब फंक्शन कॉल होगा तो आई की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, आउटपुट विल बी 1 2 3। इन दिस केस द आउटपुट विल बी 1 1 एंड 1। दिस इज द ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू उसी ब्लॉक के अंदर होती है जिसके अंदर डिफाइन किया है, और कोई बाकी फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें उस ब्लॉक के अंदर नहीं होती, डिफरेंट फंक्शंस के बीच में भी वो एग्जिस्ट करती है। So this is static storage class, and the fourth one is external storage class. The storage is memory. If we declare a variable as external, the value of the variable will get stored in memory. Its default initial value is 0. The scope is global. This is the difference. It is different from the previous 3 storage classes. ग्लोबल मीन्स हम वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर करें, वॉइड मेन के अंदर करें, वॉइड मेन के बाहर करें, और उस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा। एंड लाइफ एज लॉन्ग एज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डज नॉट कंप्लीट, वो तब तक उसकी वैल्यू परसिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, जब तक प्रोग्राम लास्ट टर्मिनेट ना हो जाए। लुक एट दिस एग्जांपल, आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल इंट आई, वॉइड मेन से पहले ही डिक्लेयर किया है। आफ्टर राइटिंग द हेडर फाइल्स आई हैव रिटन अ वेरिएबल इंट आई, वॉइड मेन, मेन के अंदर मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दी। अब मेन के अंदर आई मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, ना ही मैंने क्रिएट किया है, मेन के बाहर किया है, बट इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो ये इसको एक्सेस कर सकता है। तो आई की वैल्यू, आई और इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यू 0, तो फर्स्ट आई को 0 प्रिंट करेगा। फिर मैंने उसके बाद ये दो फंक्शंस दिए हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में आई को 1 इंक्रीमेंट किया और उसको प्रिंट करवाया, डिक्रीमेंट में उसको पहले 1 डिक्रीमेंट किया, माइनस किया 1, फिर उसको प्रिंट करवाया। जब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करेगा, आई में 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 प्रिंट करेगा। फिर से इंक्रीमेंट कॉल किया, आई में पहले 1 था, अब 2 हो गया, 2 प्रिंट करेगा। फिर डिक्रीमेंट कॉल किया, डिक्रीमेंट के अंदर आई में प्रीवियसली 2 था, 1 लेस हुआ, 1 हो गया, एंड फाइनली 0। इस तरह से जो एक्सटर्नल है, तो इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू सारे फंक्शंस के बीच में परसिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, चेंज नहीं होती। इट्स लाइफ एंड स्कोप इज थ्रू आउट द प्रोग्राम। And last one is mutable storage class. This is a special storage class and it is specially linked with the object, class and object. अब आगे करेंगे हम क्लास का कॉन्सेप्ट, सेकंड यूनिट में आप अच्छे से करोगे। तो क्लास के अंदर बहुत सारे डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो जब हम बहुत सारे डेटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, तो उनको हम अगर किसी एक पर्टिकुलर या एक सेट ऑफ डेटा आइटम्स को हम चेंज करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू चेंज द एंटायर डेटा एलिमेंट्स ऑफ अ क्लास, वी वांट टू चेंज अ सिंगल और सम सेट ऑफ डेटा आइटम्स, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय मेकिंग इट एज म्यूटेबल स्टोरेज क्लास। हम उस वेरिएबल को एज म्यूटेबल क्रिएट करेंगे एंड यूजिंग कॉन्स्ट फंक्शन हम उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। द स्टोरेज इज मेमोरी, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज गार्बेज, scope it's local, and its life is within the class. So this is all about the various storage classes available in C++.